start. Today we are going to start our new lesson that is the United Nations. But first of all, I introduce myself. Myself Gayatri Dilip Kumar Wagh from Goregaon MPS Municipal Secondary School. And today's topic is the lesson from Political Science, the United Nations. Okay, let us start the lesson. Now, the United Nations. The United Nations means which is where collective nations. Okay, the United Nations जिसको आप हिंदी में ये भी जान सकते हो कि संयुक्त राज्य संघ जिसको बोलते हैं, that is the United Nations. So United Nation is the world's largest international organization. It is an important organization, and near about 193 countries are the members of the organization. Now in the picture you can see there are so many representatives are sitting in this assembly hall. So near about 193 countries are to participate or are the members of this United Nations. So we are going to study about this United Nations. Now the background of this United Nations is that two world wars were fought at the start of the 20th century. Life and property was destroyed on a large scale in these wars. As a result, a League of Nations was established after the First World War. So, first of all, we clear it, the League of Nations. Now, the League of Nations means after the First World War, intergovernmental organization whose principal mission was to maintain world peace. It was founded on 10th January 1920 and following the Paris Peace Conference that ended the First World War and ceased the operation on 20th April 1946. Now, first of all, as we know, there were two world wars was fought. The First World War was between Allied powers and Central powers. Okay, जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में हुआ था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था अलाइंड पावर बिटवीन अलाइंड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स. ओके, बट द nations which come under these powers were also were were very great in that time also. Okay, ये जो पावर्स थी ये सुपर पावर्स थी उसी टाइम में. फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, जर्मनी, टर्की, ये सब बहुत ही पावरफुल नेशंस थे उस टाइम में. और टू शो देयर पावरफुलनेस एंड टू रूल ऑन द वर्ल्ड, उनको वर्ल्ड के ऊपर रूल करना था. जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ये सब बड़ी कंट्रीज है, तो इनको क्या करना था, इनको रूल करना था कंट्री के ऊपर, इसलिए इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फॉट की. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ इसके लिए हुआ. बट आफ्टर सीइंग द डिस्ट्रक्शन, द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ, बहुत सारी प्रॉपर्टी और लाइफ मतलब देश का नुकसान हुआ. सी स्टूडेंट्स, बिहाइंड एवरी वॉर, किसी भी वॉर के पीछे व्हाट इज लेफ्ट, द डिस्ट्रक्शन इज देयर. सिर्फ और सिर्फ नाश जो होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, यही डिस्ट्रॉयनेस जो होती है यही रह जाता है. वॉर तो दो देशों के बीच में होती है लेकिन नुकसान दोनों देश का होता है. जीतता कोई एक देश है लेकिन नुकसान जो होता है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, चाहे वो देश की होती है, प्रॉपर्टी की होती है, लाइफ की मतलब लोगों की होती है. तो ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ बहुत बड़ा. आफ्टर सीइंग दिस, सो दिस फर्स्ट लीग ऑफ नेशन जो था ये एक ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ. द पर्पस ऑफ दिस लीग ऑफ नेशन टू स्टॉप द वॉर. ठीक है, किसी भी टाइप का वॉर जो है इसको स्टॉप करना है. बिकॉज आफ्टर सीइंग द डिस्ट्रक्शन, ये सब डिस्ट्रक्शन देखने के बाद में सारे देशों ने ये तय किया कि अभी हमें जो है वॉर नहीं करने, झगड़े नहीं करने, पीसफुल रहना है, हमें शांति से रहना है, एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहना है. तो इस लीग ऑफ नेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ. बट व्हाट हैपेंड after the United Nations First World War and United Nations established after the Second World War. Now see what happened after this First World War. So this League of Nations did not succeed, and because of powerful leaders like Hitler. जैसे हिटलर जो थे वो एक पावरफुल लीडर थे. अब उनको जो था कि अब इस पूरे दुनिया पे मेरा ही राज होना चाहिए. हिटलर रूल आपको मालूम ही होगा. Okay, from Germany, he is from Germany, so he want to rule over on the world. But after the this League of Nations, after they are also in this that sense ki no,
we have to rule on the nation. इतना सब होने के लीग ऑफ नेशन का स्थापना होने के बाद में भी उनको ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे राज करना ही है पूरी दुनिया के ऊपर. एंड फॉर दैट पर्पस दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज fought. So the Second World War fought between aligned powers and Axis powers. Means the aligned powers means Britain, France, Austria, Canada, New Zealand, India, because that time India was under British countries. Okay, Soviet Union, China, America, and Axis power means Germany, Japan, Italy. Now, when you hear these names, all these are the great nations. ओके ये सब बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, बड़े बड़े नेशंस थे. तो अगेन एज आई टोल्ड यू दैट जर्मनी, फ्रॉम जर्मनी हिटलर जो थे, ही वांट टू रूल ओवर द वर्ल्ड, उनको रूल करना था. एंड टू शो हिज पावर अगेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज फॉट. एंड इन दैट वॉर न्यूक्लियर वेपन्स आर यूज्ड. ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो यूज हुआ. एंड more than destruction from the first world war was happened in the second world war. As you know, the Hiroshima and Nagasaki जो में जो न्यूक्लियर बॉम्ब स्फोट हुआ था, उसके कारण उसका जो रिएक्शन है वो आज तक वहाँ के लोगों पे दिख सकता है हमें. तो सी लाइक इट, तो ये न्यूक्लियर वेपन्स जो यूज हुए उसके कारण अगेन दिस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड. ये जो यूनाइटेड नेशन जो था ये इसका एस्टेब्लिश हुआ और इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ऑफ द ऑल नेशन टू डू peace. The United Nations was established after the Second World War to instill this understanding among all nations. This type of understanding to maintain international peace and security, develop friendly relation among all the nations, and achieve international cooperation and be a center and harmonizing the action of nations. It means what? All the nations come together and live with peace and security. कि जितने भी वर्ल्ड में जितने भी नेशंस हैं उन लोगों ने साथ में आना है, और साथ में आने के बाद में उन्होंने कैसे रहना है, सबसे पीसफुली रहना है, सिक्योरिटी एक दूसरे को देनी है, किसी ने एक दूसरे के ऊपर वॉर नहीं करने, हमले नहीं करने. और अगर छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, तो इनको शांति से निपटाना है. और इन सब के लिए क्योंकि when there is a major thing, one organization is very important. कोई भी एक बड़ी चीज करनी होती है उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सबके आइडियाज जानती है, सबके थॉट्स जानती है और उसके ऊपर फिर वो एक रिजल्ट तैयार करती है. ठीक है, तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन जो था, संयुक्त संघ, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, the chronology of the establishment of this United Nations. Now see, in one stroke the United States nation was not established. एक ही स्ट्रोक में नहीं बना कि हाँ अभी हुआ, मीटिंग्स हुई और यूनाइटेड नेशंस बन गए, ऐसा नहीं था. ये एक स्टेप से गुजरे. नाउ दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन. Now first in 1941 the Atlantic Treaty was signed between Prime Minister of England Sir Winston Churchill and American President Franklin D. Roosevelt during the Second World War on 14th August 1941. It means in 1941 the first this territory was signed, the Atlantic Territory. Okay, according to this territory, that what is happening is this, what is written in this territory, a decision was taken to set up a permanent mechanism. Mechanism means a rule. Okay, mechanism to establish internal security after the Second World War was over. Means after Second World War, then this war was opened, this territory was signed, and in this territory it is written that we have to give security to all the nations. Okay, there is no war will be happen in all these nations. कि उसके बाद में कोई भी war नहीं करेगा, क्योंकि after the war they saw a heavy destruction of life and property because of that. Now, detailed discussion followed on the decision in two conferences among allied powers in 1944 and 1945, and a draft of treaty was established and international organization was prepared.
Now they decided to establish an international organization to control this system. At San Francisco in America, representatives of 50 countries drafted a charter. Charter means a book of laws of the United Nations and nations after discussion. Means at the starting of this United Nations, only 50 countries are the members of this United Nations. ठीक है, स्टार्टिंग में जब ये एस्टेब्लिश हुआ था तो स्टार्टिंग में 1941 में ये फर्स्ट टेरिटरी हुई, जिसके अंदर ये बताया गया कि अलाइन पावर्स जो है या फिर सेंट्रल पावर्स है, एक्सिस पावर्स, इन लोगों ने क्या करना है कि इन्होंने एक दूसरे के बीच में शांति बनाए रखनी है, कोई किसी के ऊपर वॉर नहीं करेगा, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। ये फर्स्ट 1941 में हुआ और 1944 में एक चार्टर मतलब एक लॉ जो बनाए गए, ये ड्राफ्टेड किए गए यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कि अभी इसके ऊपर साइन किया जाता है कि 50 मेंबर्स जो थे, 50 कंट्रीज जो थे तब उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे। एंड as soon as the war got over, the charter was signed on 24th October 1945। ये जो चार्टर बना, ये जो लॉज बने, इनको साइन किया गया, मतलब अब वो रूल में आ गए। ठीक है, वो अब सबने मानना स्टार्ट कर दिया इन 24th October 1945 एंड द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। The United Nations as an international organization of sovereign nations। इसका मतलब है कि this United Nations it become a international organization of sovereign nations। sovereign nations means independent nations। ठीक है, कि जितने भी सोविलियन नेशंस थे, जितने भी इंडिपेंडेंट नेशंस थे, सी इट is about 1945, we got independence in 1947। it means what, in that time we are not independent। ओके, जब ये यूनाइटेड नेशन का ये जो चार्टर साइन किया गया, उस समय हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे, क्योंकि इंडिपेंडेंस हमें 1947 में मिली है, ये 1945 में। इट मीन्स दैट टाइम वी आर डिपेंडेंट, हम लोग अंडर ब्रिटिश के आते थे, तो ये भी खुद एक इंडिपेंडेंट नेशन था, इसलिए हम लोगों को उसके अंडर लिया गया। ठीक है, बट एट दैट टाइम दिस यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोवेरियन नेशन। जितने भी इंडिपेंडेंट नेशन थे, इन सब के ऊपर ये जो यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन था, यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसका रूल जो था वो चलता था। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, the objectives of United Nations। now see students, every organization have some objectives। okay, बिना ऑब्जेक्टिव के कोई भी नेशन काम नहीं करता है। so there are some objectives of this United Nation also। now what, the United Nation is the world's largest international organization। in the beginning only 50 countries were members of United Nations। today this number has gone up to 193। all these member nations come together on the platform of the United Nations। the United Nations has its own definite objectives। briefly, the United Nations takes up all necessary measures to establishing international peace। okay, now what, United Nations is an intergovernmental organization that aims to maintain international relations, peace and security, develop friendly relations among nations, achieve international cooperation, and be a center of harmonizing the actions of nations। it means what, so as we read that when this United Nations organization was established, only 50 countries were the members of this United Nations. But as the other countries of this nation get independence, and slowly and gradually they connected to this organization. And now 193 countries are the member of this international organization। ओके, जब मैंने बताया कि जब ये साइन हुआ था तो केवल 50 मेंबर्स थे, लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड में
जैसे इंडिया था, वो पहले इंडिपेंडेंट नहीं था तो वो भी इंडिपेंडेंट हुआ। ऐसे बहुत सारे नेशंस हैं जो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होते गए और वो धीरे धीरे इनसे अटैच होते गए, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आल्सो बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। एंड नाउ at today's date 193 countries are the members of the country is this nation. Okay, now there are some objectives. The first one, to establish friendly relation among nations. The first objective of this nation is to establish friendly relation with all the nations. किसी भी एक कंट्री जो है, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सी रशिया, रशिया इज अ बिग कंट्री, ठीक है, एक बहुत बड़ा नेशन है रशिया, लेकिन उसके सामने इंडिया बहुत छोटा है, बट वी आर विद द फ्रेंडली रिलेशंस। भले ही हम लोग, हमारी कंट्री उनके सामने छोटी हो, या फिर हमारे और श्रीलंका लीजिए, श्रीलंका हमारे सामने छोटा है, फिर भी हमारे और उसके बीच में फ्रेंडली रिलेशन है। वी आर हैविंग द फ्रेंडली रिलेशन। नाउ यही वो उन्होंने बोला है कि फर्स्ट एम टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस। Okay. Second one, to enhance international security by solving international disputes. Okay. सेकेंड में टू एनहांस इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी सबको दी जाए। ओके, अगर किसी दो कंट्रीज में डिस्प्यूट्स हैं या फिर कोई झगड़े चलते हैं, तो इन झगड़ों को मिटाने का काम जो है, ये फरियाद, जैसे हम कोर्ट की तरफ अपनी फरियाद लेके जा सकते हैं ना, अगर हमारे दो फैमिलीज में या फिर गांव में अगर झगड़े चलते हैं, तो वी टेक दैट प्रपोजल और डिस्प्यूट टू द कोर्ट, हम लोग कोर्ट के पास जाते हैं। बट what happens when two countries are fighting with each other? Just जैसे take the issue of Kashmir and for Kashmir between India and Pakistan. Okay, we are fighting for each other, but we can't declare a war directly. Okay, और इसके लिए ये जो बात है, ये डायरेक्ट यूनाइटेड नेशंस तक गई है। द इशू ऑफ कश्मीर, कश्मीर का जो इशू है वो वहां तक गया है, और दे आर जस्ट डूइंग समथिंग ऑन दैट इशू, ठीक है, वो उसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी हैव टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट इन पीसफुल मैनर, हमको शांति में ये बातें निपटानी, हमको वॉर नहीं करना है। तो इसलिए ये जो इशू है वो वहां तक गया हुआ है। ओके, सेकेंड वन, टू सेफगार्ड एंड फोस्टर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम। ओके, टू सेफगार्ड द फोस्टर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम मतलब किसी भी नेशन का जो उनका जो राइट्स है, ह्यूमन राइट्स वहां पे दिए गए हैं, उनको उनको अच्छा करना है, उनको अच्छा रखना है कि फ्रीडम उनको मिले, उनको स्वतंत्रता मिले, हर एक देश के हर एक नागरिक को स्वतंत्रता मिले। फॉर एग्जाम्पल, टेक वन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो था वहां पे वो डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं था, इट वॉज डिपेंडेंट। वहां पे बहुत ही ज्यादा वहां पे अत्याचार होते थे लोगों के, बट व्हाट दिस नेशन डू, यूनाइटेड नेशन ने उसको फ्री कर दिया, ठीक है, लाइक दिस। क्योंकि हर एक एवरी पर्सन फ्रॉम दिस वर्ल्ड इज इंडिपेंडेंट, इज टू बी, उसको फ्रीडम चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए वो काम करते हैं कि यूनाइटेड नेशन का काम है कि ईच एंड एवरी नेशन गेट इंडिपेंडेंस, हर एक नेशन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और प्लस दे हैव टू फर्स्ट देयर ह्यूमन राइट्स, जो उनके ह्यूमन राइट्स है उसको वो प्रिजर्व करने का काम करते हैं। ओके, now along with this, the United Nations also aim at enhancing economic cooperation at international level. Okay, now international level पे cooperate करना है, means how? Now see, we are cooperating with America, America is cooperating with us. Okay, now these are the relations between two nations. Okay, तो यूनाइटेड नेशन यही करता है कि हमको, अगर कोई देश कमजोर है या फिर कोई देश इकोनॉमिकली वीक है, तो दे आर गिविंग मनी, ठीक है, वो उनको पैसा देते हैं उनका देश चलाने के लिए, ठीक है। तो अब वो लोन के हिसाब से होता है, जैसे कुछ होता है, आगे उनकी अलग सी डीलिंग होती है, बट दे आर cooperating with each other. इंटरनेशनल कॉपरेशन बहुत जरूरी है। अगर कोई देश बहुत ज्यादा गरीब है या फिर उसके ऊपर कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है या फिर नेचुरल क्लैमिटीज आई है, तो ये अदर नेशंस का काम बनता है कि हमें उस नेशन को हेल्प करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है, ये सब यूनाइटेड नेशन जो है वो करता है। ओके, all member countries are bound by duty to respect the diplomatic privilege of sovereign nations, not to attack other countries
and abide by international law and treaties. Now, all members of these countries are bounded by duty to respect the diplomatic privilege. ठीक है, इस यूनाइटेड नेशंस का जो संघ है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके भी जो भी मेंबर्स है, ऑल द मेंबर्स, कंट्री मेंबर्स जो है, मेंबर कंट्री जो है, दे आर बाउंडेड टू रिस्पेक्ट द सोवेरियन नेशन. उनका ये फर्ज बनता है कि उनके साथ के जो मेंबर्स हैं, जो सोवेरियन नेशंस हैं, इंडिपेंडेंट नेशंस हैं, उनका वो रिस्पेक्ट करें. अगर वो छोटा है, इफ द अदर कंट्री इज स्मॉल, तो नॉट अ बिग कंट्री और लार्ज कंट्री कैन अटैक ऑन दैट कंट्री टू टेक इट्स इंडिपेंडेंस. ठीक है, उसका अगर छोटी कंट्री भी है और उसके साथ में कोई बड़ी कंट्री भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर Russia is there, okay, and Iraq is there. Now Russia can attack on Iraq. तो इराक छोटा कंट्री है, उसके ऊपर अगर रशिया ने अटैक कर दिया तो वो हार ही जाएगी क्योंकि वो बड़ी कंट्री है. बट इफ दे आर द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, दे कांट अटैक ऑन ईच अदर. ठीक है, क्योंकि इन्होंने वहां पे बाउंडेशन दिया है, उनको इस बाउंड में रखा है, अवॉइड किया हुआ है, उनको बांध के रखा है इस रूल्स एंड रेगुलेशंस में कि जो भी सोवेरियन नेशंस है वो एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे. ठीक है, उल्टा उन जो भी इंटरनेशनल लॉ और टेरिटरीज है उनका वो फॉलो करेंगे, और अगर उन्होंने नहीं किया तो उनको उसकी पनिशमेंट मिलेगी. The United Nations is an organization created by the coming together of sovereign nations. Naturally, it is based on certain principles or rules. They are briefly stated below. Now, these United Nations is an organization created by coming together of sovereign nations. All sovereign nations, all independent nations are coming together and forming this united organization. सारे सोवेरियन नेशंस है वो एक साथ आए हैं और उन्होंने सब ने मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एस्टेब्लिश की है. और इसके लिए उन्होंने थ्रू सम प्रिंसिपल्स, उन्होंने कुछ इसके लिए प्रिंसिपल्स बनाए हैं. व्हाट आर दे? नाउ ऑल मेंबर नेशंस विल हैव द सेम स्टेटस. There is no discrimination among nations based on geographical size, economy or military power. As we do. जैसे हमने बताया कि सारे के सारे जो मेंबर्स हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस नेशन हैव द सेम स्टेटस. मे बी दे आर स्मॉल इन साइज, मे बी स्मॉल इन साइज मीन geographical size. If their geographical size is low, no problem. If they are economic weak, again no problem. And if they have less military power, then also there is no problem, because all these the countries which are under these United Nations have same status, have same values. Maybe they are small or big, maybe they are economy great or weak, or they have more military power or less military power. All the nations have same status. Okay. Second one, all member nations of the United Nations should respect the freedom and geographical unity of other member nations. Okay. See, this is the principle. ये principle है United Nation का. All member nations of United Nations should respect the freedom and geographical unity of other member nations. कि जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं उन्होंने एक दूसरे की स्वतंत्रता जो है, फ्रीडम है, उसके ऊपर किसी ने भी सवाल नहीं उठाना है या फिर लेने की कोशिश नहीं करनी है. और उनकी जो जोग्राफिकल यूनिटी है, मतलब सारे स्टेट जैसे जोग्राफिकल यूनिटी हमारे देश में, अवर इंडिया हैव सो मेनी स्टेट्स, हमारी जोग्राफिकल यूनिटी है. ठीक है, हमारे इधर अलग अलग स्टेट्स हैं, कोई कोस्टल लाइन के हैं, कोई हिली एरिया के हैं, कुछ अलग अलग जोग्राफिकल इसके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक साथ रहते हैं. ओके, तो इसलिए हमारे ऊपर कोई कोई कुछ चैलेंज नहीं कर सकता, हमारी यूनिटी को कोई तोड़ नहीं सकता. एंड यूनिटी ऑफ द अदर मेंबर नेशंस, हमारे जो नेशंस है, हमारा जो नेशन है, इसी को कोई तोड़ नहीं सकता. फिर भी आप देख सकते हो कि जैसे चाइना है, हाँ, वो जबरदस्ती आने की कोशिश कर रहा है. यहाँ से पाकिस्तान है, वो जबरदस्ती आने की कोशिश कर रहा है, बट दे आर ऑपोजिट टू दीज प्रिंसिपल्स. इस प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाते हैं वो, इसलिए दे आर पनिश्ड. ओके. All member nations should solve their international disputes and mutual differences by peaceful means.
Okay, all the members of this United Nations have to solve their international disputes. There are disputes because when we are treating with each other, हम लोग एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, वी आर ट्रेडिंग विच ईदर, वी आर डूइंग बिजनेस विथ ईच अदर, वी आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। हम एक दूसरे नेशंस के साथ में हम लोग बिजनेस करते हैं, हम लोग वहां से उनके साथ कमर्शलाइज होते हैं, हम कमर्शियल ट्रेड्स करते हैं, बहुत सारी ऐसे हमारे एक दूसरे के बीच में हमारे अंदर जो है आदान प्रदान चलता है, लेना और देना चलता है। सो द प्लेस ऑफ डिस्प्यूट इज देयर। कुछ जगह पे हो जाता है कि कुछ चीजें हमको मानी नहीं जाती है, कुछ चीज हम लोग नहीं मानते, तो कुछ झगड़े रहते हैं हमारे बीच में। तो इफ देयर डिस्प्यूट्स आर देयर, अगर डिस्प्यूट्स होती हैं या फिर कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो सो वी हैव टू सॉल्व दैट डिस्प्यूट, दैट प्रॉब्लम्स इन पीसफुल मैनर। हमें शांति से बैठ के वो सारी प्रॉब्लम्स क्लियर करनी है। But as you say, today Kashmir is Pakistan is not listening to us. China is not listening to us. ठीक है, पाकिस्तान हो गया या फिर चाइना हो गया, तो सी दिस रूल इज देयर बट दे आर डूइंग डिफरेंट फ्रॉम दिस। They are saying that solve your problems with peaceful manner, but are they are doing peaceful manner? No, they are not। ठीक है, अभी अगर हम बोलते हैं चाइना या पाकिस्तान, ये दो ही लोग हैं जो हमारे दुश्मन हैं, बहुत ज्यादा अभी करीबी दुश्मन है। तो लेकिन वो दोनों भी शांत नहीं बैठते हैं, वो किसी न किसी तरह से हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश ही करते हैं, और रिटर्न में फिर इंडिया भी करता है। तो उसमें वो प्रॉब्लम जो डिस्ट्रीब्यूट्स हैं वो दिखते हैं, और एंड इट बिकम अ इंटरनेशनल प्रॉब्लम। ये जो है टेररिज्म जो अभी चल रहा है पाकिस्तान में, जो हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन चुका है। एंड दे आर अलाइंग दिस अमेरिकन। ठीक है, वो अमेरिका सॉरी अमेरिका जो है ये सब पाकिस्तान को बताते रहते हैं कि आपको ये करना गलत बात है। दे आर सपोर्टिंग अस, वो हमको सपोर्ट करता है लेकिन पाकिस्तान को नहीं करता है। तो इस तरह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो हमको फिर भी दिखती है कि यूनाइटेड नेशन के एजेंडा में लिखा हुआ है, फिर भी ये लोग उसके ऑपोजिट जाते हैं। ओके, now these are some principles of United Nations. Now next, structure of United Nations. Now what is the structure? Now see, every organization is founded, ठीक है, जिसका फाउंडेशन होता है वो कुछ मेन पिलर से होता है। ओके, सी आवर होम, जो हमारा हाउस है उसका फाउंडेशन होता है, फिर उसके ऊपर पिलर्स होते हैं, और पिलर्स के ऊपर ही हमारा घर जो है वो बना होता है। ओके, लाइक दैट every organization has some pillars. Now this United Nation has six main organs, or we can say six main pillars. Organs means as in our body there are different types of organs are there, they are working there as per their this routine, and then our body is working। जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वो अपना अपना काम करते हैं, और इसी से हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है और काम करते रहती है। लाइक दैट ऑल्सो, जिसको हम इसको ऑर्गन्स बोला है, हम उसको पिलर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सो यूनाइटेड नेशन हैज सिक्स मेन पिलर्स। नाउ द पिलर्स आर, फर्स्ट वन इज जनरल असेंबली, second one is security council, third one is economic and social council, third one is fourth one is international court and justice, fifth one is trusteeship council, and sixth one is secretariat। Okay, all these are the six pillars or the main six organs of United Nations। Now see, apart from these six major organs, okay, apart from these six major also there are many affiliated, there are many affiliated organizations of the United Nations that help in its functions. They are called specialized agencies. Working in a specific area, they help different nations in those areas. The following are some of these important agencies. Now see, affiliated organizations means what? Some affiliated, some attached organization is there, or international, sub inter, national means international organizations are there, or some attached organizations are there which helps this nation। ठीक है, देखिए यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ा फर्म है, एक बड़ा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रिंसिपल्स है, इनको कंप्लीट करने के लिए, या फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसका वर्क कंप्लीट करने के लिए कोई अकेला नहीं कर सकता। सो
some they have to be some support, they उनको कुछ सपोर्ट की जरूरत चाहिए, और ये कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो इनको सपोर्ट करती है, ठीक है, टू मेक यूनाइटेड नेशंस स्ट्रॉन्ग। और यूनाइटेड नेशन की हर जगह पे मीन्स इन द वर्ल्ड, हर जगह पे उनका ध्यान रहे, हर जगह पे हर साइड से एवरी एरिया शुड बी बेटर, हर एक एरिया जो है वो अच्छा रहना चाहिए, इसलिए ये जो छोटी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये उनको हेल्प करती हैं। नाउ विच टाइप ऑफ हेल्प इज देयर एंड विच आर दिस ऑर्गेनाइजेशन? नाउ फर्स्ट वन is International Labour Organization. International Labour Organization, which is said as ILO, that is International Organization. The International Labour Organization is a United Nation agency whose mandate is to advance social and economic justice through setting international labor standards. Founded in October 1990 under the League of Nations, it is the first and the oldest specialized agency of UN, means United Nations. Now see, International Labour Organization. लेबर मतलब जो काम करते हैं, मजदूर संघ, ठीक है। तो ये मजदूर संघ सिर्फ भारत में या फिर किसी स्टेट तक नहीं सीमित है, ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका एक पार्ट है जो हेल्प करता है वो है ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इनका काम होता है कि जितने भी लेबर्स काम करते हैं तो उनको कितना मेहनताना मिलना चाहिए, उनको कितना पैसा मिलना चाहिए, उनकी वर्किंग आवर कितना होना चाहिए, ड्यूटीज कितनी होनी चाहिए, कितने आवर की ड्यूटीज होनी चाहिए, ये सब सेटिंग जो है यहाँ से ही किया जाता है। और उसके साथ में एडवांस लोग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, कि उनको समाज में और आर्थिक, इकोनॉमिक मतलब होता है पैसा, आर्थिक परिस्थिति, तो उनकी सामाजिक और आर्थिक जो कि उसके साथ में जस्टिस की जाए, ठीक है। ये सारी चीजें जो है, सारी की सारी सेटिंग जो है, जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस अलाउ किए जाते हैं, ये सब इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड में किया जाता है। और इसका फाउंडेशन हुआ था इन अक्टूबर 1990 अंडर द लीग ऑफ नेशन। सो इट इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। ये सबसे पुरानी एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, next one is Food and Agriculture Organization. Food and Agriculture Organization of the United Nations is a specialized agency of the United Nations that lead international efforts to defeat hunger and improve nutrition and food security. Its Latin motto, Flat Plains, translate to "Let there be bread." Let there be bread means they have to food. They want food everywhere. It was founded in October 1945. Now see, the Food and Agriculture Organization. इसके नाम से ही पता चल जाता है कि फूड मतलब खाना और एग्रीकल्चर मतलब खेती, ठीक है। इनसे मिला हुआ, इनके लिए बना हुआ ये एक एजेंसी है। इट मीन्स देयर शुड बी नॉट लैक ऑफ फूड इन द वर्ल्ड, और एट ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी इस वर्ल्ड के कोने कोने तक खाना पहुंचना चाहिए लोगों के पास में। बिकॉज नेशन इज अलाइव व्हेन द पीपल आर अलाइव, व्हेन दे आर हेल्दी, देन ओनली नेशन कैन ग्रो। कोई भी नेशन तब बढ़ सकता है, तब जिंदा रह सकता है जब उसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनके पास में खाना होगा। जब वो हेल्दी होंगे तभी तो वो नेशन डेवलप करेगा। अगर उस नेशन के लोगों के पास में खाना ही नहीं है, वो भूखे हैं, तो फिर नेशन कैसे डेवलप करेगा? सो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सेज दैट लेट देयर बी ब्रेड। लेट देयर बी ब्रेड मतलब हर एक के पास में ब्रेड होना चाहिए। ब्रेड मीन्स खाना होना चाहिए, क्योंकि ब्रेड इज जो शब्द है वो उन्होंने खाने के लिए, जिसको हम रोटी बोलते हैं, कि हाँ रोटी सबके पास में होनी चाहिए, रोटी होनी चाहिए मतलब खाना होना चाहिए सबके पास में। तो दे आर लीडिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर, मतलब भूखमरी कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, सबको न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए। तो ये सब पहुंचाने का काम जो है ये नेशन करता है। आपने कभी देखा होगा दैट यू हैव ऑब्जर्व दैट
so many parts of Africa. अफ्रीका के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिलता है. दे आर वेरी पुअर. वो बहुत ही ज्यादा पुअर है कि वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को खाना ही नहीं मिलता है. देन दिस यूनाइटेड नेशन सपोर्ट दैट नेशन. अफ्रीका को वो सपोर्ट करता है कि उनको जो खाना जो है वो प्रोवाइड करते हैं ये सब यूनाइटेड नेशन. तो ये एजेंसी जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब वहाँ पे देख रेख का काम करती है कि किसी भी नेशन में अगर कहीं पे खाना मिलता ना हो लोगों को या फिर नेचुरल डिजास्टर आता हो तो वहां तक खाना कैसे पहुंचाया जाए. तो ये सब काम जो है ये ऑर्गेनाइजेशन देखती है. नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग WHO के नाम से भी जानते हैं. वर्ल्ड एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. The World Health Organization is a specialized agency of the United Nations responsible for international public health. The WHO Constitution, which established the agency's governing structure and principle, states its main objective as the entertainment by all peoples of the highest possible level of health. Attainment of the people of the highest possible level of health. Now see, it is related to health. WHO जो कि हेल्थ से रिलेटेड है. मीन्स इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनकी हेल्थ कैसी रहनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए. पब्लिक हेल्थ है वो बेटर रहनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए. इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है WHO, दैट इज वर्ल्ड एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. सो मैनी वैक्सीन्स आर देयर. ओके, बहुत सारी वैक्सीन है जो कि ये WHO जब तक साइन नहीं करता तब तक किसी देश में जाती नहीं. ठीक है, जैसे अभी हमारा कोरोना वैक्सीन का भी निकला है तो इसका टेस्टिंग WHO में हुआ कि आखिर में उन्होंने किया कि यस इट इज प्रूव दैट इट इज ओके, देन ओनली दे कैन यूज. तो जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको क्योर करने का काम ये करते हैं क्योंकि इनका जो ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव, ऑल पीपल ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ. मतलब हर एक को जितनी अच्छी हो सके उतनी उनके पास में हेल्थ होनी चाहिए, मतलब उनका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए. तो पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उन सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो लोग हेल्दी रहे, इन सब को देखने का काम जो है ये ऑर्गेनाइजेशन करती है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड बैंक. Now, the World Bank is an international financial institution that provides loan and grants to the government of low and middle income countries for the purpose of pursuing capital projects. Now, capital projects मतलब जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स मतलब जो कार्य होते हैं बड़े बड़े, जैसे अभी कारखाने होंगे, इंडस्ट्रीज होंगी या फिर कोई बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे जो देश के काम में आए तो उनको करने के लिए लोन देने का काम ये वर्ल्ड बैंक करते हैं. ठीक है, बैंक का काम आपको मालूम ही है, दे प्रोवाइड अस लोन्स. ठीक है, हमें जब पैसे की जरूरत होती है तो हम बैंक से लोन निकालते हैं, तो वो तो हमारे तक होता है, लेकिन अगर हमारे देश को जरूरत है तो वह कहाँ जाएगा. हमें जरूरत होती है तो हम नेशनलाइज बैंक के पास में जाते हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमें लोन चाहिए. लेकिन अगर देश को लोन की जरूरत पड़े तो दे गो टू दिस वर्ल्ड बैंक, वो वर्ल्ड बैंक के पास में जाता है. एंड दिस इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ लो और मिडिल इनकम कंट्रीज. जो भी कंट्रीज लो या मिडिल इनकम की जो कंट्रीज है उनको डेवलप करने के लिए, उनके देश को डेवलप करने के देते लोन्स, वो उनको लोन देते हैं. वर्ल्ड बैंक में से वो उनको लोन देते हैं. लोन देते हैं मतलब उनको वापस भी करना पड़ता है, जो देश लेते हैं उनको वापस भी करना पड़ता है. ओके, दैट इज द वर्ल्ड बैंक. द इंटेंशन ऑफ दिस वर्ल्ड बैंक इज दैट एवरी एंड ईच कंट्री हैज टू प्रोग्रेस. उनका एक ही है कि पैसों की कमी से कोई प्रोग्रेस कम नहीं पड़ना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए. तो अगर किसी कंट्री को प्रोग्रेस करना है तो वेरियस प्रोजेक्ट्स आर टू बी रन और उन प्रोजेक्ट्स को पैसे प्रोवाइड करने का काम वर्ल्ड बैंक जो है वो करता है. ओके, नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. नाउ this international monetary fund, that is IMF, is an organization of 190 countries working to foster global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic
growth and reduce poverty around the world. Now, same as the World Bank do this International Monetary Fund also. अब देखिए जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में बड़े, अब ये प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इनको अगर पैसा चाहिए तो वो देने का काम वर्ल्ड बैंक करती है। बट अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो कॉमन पीपल है, जो जिनके प्रोजेक्ट्स बहुत छोटे हैं, अगर उनको हेल्प चाहिए है तो दिस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेल्प्स देम। तो ये उनको एम्प्लॉयमेंट देने, हाई एम्प्लॉयमेंट है वो देती है, इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी बढ़नी चाहिए इसके लिए पैसा देती है। आफ्टर कहीं पे गरीबी है तो गरीबी को हटाने के लिए भी जो अलग अलग कुछ नॉर्म्स होते हैं उन नॉर्म्स को कंप्लीट करने के लिए भी ये फंड जो है ये पैसा जो है वो देते हैं। तो ये काम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसे आप यूनिसेफ के नाम से भी जाते हैं। ठीक है, यूनिसेफ ऑल्सो नोन एज द यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ओके, नाउ what only in the name of this name there is a children emergency fund is a United Nations agency responsible for providing humanitarian and development aid to children worldwide। जितने भी चिल्ड्रन है इस वर्ल्ड में उनकी हेल्थ को सिक्योर करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट करने के लिए ये एजेंसी काम करती है। ठीक है, दैट इज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसको आप पूरा नाम यूनिसेफ के नाम से भी जाते हैं, दैट इज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। दे हेल्प इन इंडिया ऑल्सो। ठीक है, उन्होंने हमारे इंडिया में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती थी या फिर उनको उनके डेवलपमेंट नहीं हो पाती थी, तो यूनिसेफ जो है ये हर एक कंट्री में काम करता है। तो हमारी कंट्री में भी यूनिसेफ की तरफ से बहुत सारे चिल्ड्रन के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं टू डेवलप दीज चिल्ड्रन, बिकॉज चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ एवरी कंट्री। जो बच्चे हैं वही फ्यूचर होते हैं हर एक कंट्री के। सो दे हैव टू डेवलप चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड वाइड। तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी बच्चे हैं उनको डेवलप करने का, उनको हेल्दी रखने का काम जो है, उनको एजुकेशन देना, जो कुछ काम जो है ये सारा यूनिसेफ जो है वो देखता है। ओके, नेक्स्ट वन इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप यूनेस्को के नाम से भी जानते होंगे। The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization is a specified agency of the United Nations aimed at promoting world peace and security through international cooperation in education, the science and culture. Okay, तो ये सब काम जो है ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि बच्चों को हेल्दी रखने का काम तो यूनिसेफ ने कर लिया, उनको खाना प्रोवाइड करना, उनको डेवलप करने का काम तो यूनिसेफ ने कर लिया, लेकिन उनको शिक्षा देना, ठीक है, उनको साइंटिफिक एंड कल्चर सिखाना, ये सारा काम जो है वो यूनेस्को करता है कि किस तरह से किसी भी देश के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पर्सन गेट एजुकेट देन इट्स ऑल वेज आर वेरी क्लियर। ठीक है, सारे के सारे रास्ते उनके लिए खुल जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि सारे जो उनके इंटेंशंस है वो सब क्लियर हो जाते हैं कि किस तरह से उनको आगे बढ़ना है। इफ दे आर इलिटरेट, अगर वो इलिटरेट रहते हैं तो वो अपनी जगह पे उतनी जगह पे सीमित रह जाते हैं, लेकिन अगर बच्चे पढ़ने लग जाए, जो ग्रोन अप चिल्ड्रन हैं, जो कॉलेज में जाने वाले हैं, उनके बहुत सारे अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, इनके पास बहुत सारी आइडियाज होते हैं, तो ये फिलफुल करने का काम जो है ये जो एजेंसी है वो करती है, दैट इज यूनेस्को की। और इनकी तरफ से बहुत सारे, आपको मालूम होंगे कि बहुत सारे यूनेस्को की तरफ से बहुत सारे एकेडमीज चलती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलते हैं, दोज हेल्प दीज यंग और यूथ। ठीक है, ये जो यूथ है, जो युवा बच्चे हैं, इन लोगों को काम जो है वो करने का काम ये करती है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू आवर पिलर्स और ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, अभी ये जो थे हमने पढ़े, ऑल दीज आर द एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन दोस हेल्प दिस यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन को हेल्प करने वाली ये सारे के सारे एजेंसीज थी। नाउ कम टू आवर पिलर्स और ऑर्गन्स। द फर्स्ट वन इज जनरल असेंबली। Now, General Assembly of the United Nations. All the member countries are
Members of the General Assembly. The position and the status of all the countries, whether they are rich or poor or big or small, in the same. Every year in General Assembly meets in its session from September to December. During the session, the General Assembly discuss important issues like environmental, disarmament, etc. The decisions in the General Assembly are taken by majority. These decisions are in the form of resolutions. Thus, the General Assembly only pass resolutions. It does not make any law. This significance of General Assembly lies in being a platform for representatives of member nations to come together and discuss the make decisions on the issues of global importance. Now see, all these are the work of or the policies of this the United Nations General Assembly. Now you can see in the picture that where so many representatives are sitting in this assembly. कि ये जो असेंबली है ये असेंबली हॉल का एक पिक्चर है हमारे पास में तो इसके अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ऑल दीज आर द मेंबर ऑफ डिफरेंट कंट्री और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कंट्री. Now, the position of each and every country is same in this assembly, whether they are rich or poor, they are big or small, or anything. चाहे वो कंट्री कैसी भी हो, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसी भी हो, लेकिन उसका जो भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आएगा, मतलब वो देश का रिप्रेजेंटेटिव जो भी रहेगा, उसको समान हक दिया जाएगा, उनको समान स्टेटस दिया जाएगा. And what happens? This General Assembly meet in its sessions. इनका हर साल सेशन होता है September to December. In this period, they are taking different meetings. Now, meetings on different issues like environment and disarmament. Environment जो पर्यावरण है कहाँ पे खराब हो रहा है हमको क्या उसके ऊपर प्रिकॉशंस करने चाहिए ये सारे जनरल असेंबली में डिस्कशंस होते हैं. उसके बाद में डिसआर्मामेंट द यूज ऑफ वेपन्स वी हैव टू रिड्यूस द यूज ऑफ वेपन्स. वहां पे बोला जाता है कि डिस्कस किया जाता है कि किसी भी कंट्री ने वेपन्स का यूज नहीं करना है डिस्ट्रक्शन होता है जिससे कि ठीक है. तो इसलिए ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए ये सारी डिस्कशंस वहां पे होती है. बट आफ्टर द डिस्कशन वर्ड द रिजोल्यूशन इज देयर. ठीक है. डिस्कशन के बाद में रिजोल्यूशन मतलब उसके ऊपर एक बनाया जाता है क्या बोलते हैं उसके ऊपर एक कायदा नहीं बनाया जाता वो उनको एक प्रपोजल दिया जाता है कि हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए. वो प्रपोजल देता है. दे टेक डिसीजन एज अ प्रपोजल. जो भी जनरल असेंबली में मीटिंग होगी उस मीटिंग के ऊपर जो भी उनका प्रपोजल होगा वो प्रपोजल रखेंगे. बट दे कांट मेक एनी लॉ. वो कोई लॉ नहीं बना सकते कोई कायदा कानून कायदा नहीं बना सकते कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा आपको नेशन को ऐसा ही करना पड़ेगा. नो दे कांट मेक एनी लॉ. वो कोई भी लॉ नहीं बना सकते बट दे कैन पुट देयर प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ ऑल कंट्रीज. जो भी जनरल असेंबली में मीटिंग्स होती है उसके ऊपर जो भी डिसीजन बनता है तो उसका एक प्रपोजल जो है वो उनके सामने रखा जा सकता है. But okay, the significance of General Assembly lies on the platform from representative of member of nation to come together and discuss. So, how they will discuss? The each member of that country, जितने भी कंट्रीज है उसका जो एक मेंबर है वो वहां पे प्लेटफॉर्म है मतलब जो स्टेज होता है वहां पे जाके वो अपनी बातें रखता है और अपनी बातें रखने के बाद में अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो प्रेजेंट करते हैं द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एवरी मेंबर कंट्री. So different policies are making there. Okay, composition, function, and procedures are set out of the chapter 6. Okay, now the function of General Assembly. What are the function of this General Assembly? To elect the non-permanent members of Security Council. अब आप आगे पढ़ेंगे Security Council, but they have to elect the non-permanent member of this Security Council. Non-permanent और permanent आगे हम इसमें पढ़ने वाले हैं. So only recognize this to elect the non-permanent member of Security Council. Second one to choose the United Nations Secretary General and judges. जो भी जजेस लगने वाले हैं इंटरनेशनल कोर्ट एंड जस्टिस में उनका क्योंकि असेंबली है यहाँ पे हर एक रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट होता है तो उनमें से इनको ये सब चूज करना वेरी इजी. ये बहुत इजी होता है इसलिए ये सारी चीजें इस असेंबली में की जाती है. टू पास द एनुअल बजट ऑफ यूनाइटेड नेशन.
यूनाइटेड नेशन का जो भी बजट होता है वो इसके अंदर पास किया जाता है। जैसे हमारे इंडिया में हमारे पार्लियामेंट में हम लोग जाते हैं, वहां पे बजट जो है वो डिस्कस होता है, वहां पे बजट पास होता है। वैसे ही जैसे हर एक स्टेट का अपना एक पार्लियामेंट होता है, वैसे all the countries from this world they have to face this parliament। एक हम यूनाइटेड नेशन को एक पार्लियामेंट ही बोल सकते हैं कि ये पूरे दुनिया का पार्लियामेंट है, जहाँ पे बजट जो है वो यूनाइटेड नेशन जो है वो एनुअल बजट जो है वो बनाता है। और फिर ये बजट जो हमने अभी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस बोले थे, इसके अंदर भी वो लोग पैसा देने का काम जो है ये करते हैं। ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ असेंबली, General Assembly. The first one to elect the non-permanent member of Security Council. A second one to choose the United Nations Secretary General and the judges of the International Court of Justice in consultation of the Security Council. And third one to pass the annual budget of the यूनाइटेड नेशन। तो जो कुछ जैसे पार्लियामेंट में कोई लॉज बन सकते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में लॉज बन सकते हैं, बट जनरल असेंबली में कोई लॉ नहीं बनता। दे ओनली पुट द प्रपोजल्स देयर, वो केवल प्रपोजल्स वहां देने का काम करते हैं। सो वी एंडेड आवर लेक्चर हियर। टुमारो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, दैट इज द सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, इज एनी प्रॉब्लम, इज एनी क्यूरी? I think no. Hello. Okay, sir. Yes, teacher. Thank you, teacher. Thank you so much. Okay. Thanks a lot, sir.